ये ECO Science Foundation, it's an economic cooperation organization. उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि पाकिस्तान में बेस्ड है. इट हैज़ 10 मेंबर स्टेट्स जिसमें ईरान, पाकिस्तान, टर्की और 7 ममालिक सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग अफगानिस्तान. Although it's headquartered in Iran, in Tehran, but इसका जो scientific जो technical wing है that's based in Islamabad. और जो educational या उसका financial hub है that's based in Turkey. So first of all, I would like to thank the Institute of Research Promotion, रहमत साहब जो कि executive जो lead कर रहे हैं उनको, और शालकोट इंडस्ट्री ऑफ शालकोट चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो कि ये इनोवेशन समिट स्पेसिफिक फोकस ऑन शालकोट ये करने जा रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट सेशन. इनॉग्रेशन में वी हर्ड कि काफ़ी एक्सपर्ट्स ने एक अंडरलाइन किया कि वाई शालकोट की जो मॉडल है दैट्स एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर अदर सिटीज़ फॉर पाकिस्तान. तो उसमें हम देख रहे हैं कि जी सियालकोट की एक्सपोर्ट्स हैव रीच्ड ओवर $2 बिलियन एनुअली. ये मैंने अभी जो इनॉग्रेशन में ही देखा. एंड if we replicate this in, let's say, other cities, not all districts, but a few of जो हमारे potential industrial hubs बन सकते हैं, and if we extrapolate this kind of growth, so there's a potential that we can increase our exports to over $600 billion. And that's 25 times more than the current level of the उसमें. अगर this is just to give you a thought कि जो सियालकोट has already achieved so much और उसके पीछे क्या उसकी जो equation है, what variables goes into that success equation, whether it's raw material, whether it's technology, whether it's a human capital, whether it's a geographic location, whether it has an access to infrastructure जो कि इस पूरी growth को help कर रहा है. So we need to understand those variables जिसमें सियालकोट ने एक tremendous growth achieve की है. और उसके अलावा we understand कि जी I was quite surprised कि जी सियालकोट में 10 साल के अरसे means back in 2010 there was no formal आपकी एक यूनिवर्सिटी या टेक्निकल एजुकेशन के कोई उधर इंस्टीट्यूशंस नहीं थे. डिस्पाइट द फैक्ट कि जी वहाँ पे एजुकेशनल फ्रेमवर्क या इस तरह की जो टेक्निकल जो डिलीवरी है ऑफ नॉलेज एंड उसके बावजूद भी सियालकोट हैज अचीव्ड सो मच बिकॉज दिस इज व्हाट रहमत साहब हैज बीन quite vocal about triple helix जिसमें academia, research, industry साथ मिलके काम कर रहे हैं. Government is also part of it. How is it जी सियालकोट but despite all this has been able to achieve so much? और एक खास किस्म का माइंडसेट है इन सियालकोट, that's an entrepreneurship without any एक नदीम साहब in the inauguration he mentioned that Sialkot is not considered a technological hub, it's an industrial hub. But इतनी technological integration के बावजूद भी उसमें क्या फैक्टर्स हैं कि वो they are growing at a rapid pace. तो इन सारी चीज़ों को, and to be frank at the outset I would like to put a disclosure कि I'm not a governance expert, I'm not a policy expert, I work in a technology space, but I understand the fact that technology space के लिए grow करने के लिए governance and taxation and reforms like this are very important. So we have an excellent panel today. रहमत साहब हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च प्रमोशन. मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बचपन से उनको जानता हूँ और इसी काम में लगे हुए हैं. He tries to bridge the he tries to serve as a bridge between academia and industry और वो बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं. Then we have Dr.
Mahmood Khalid Saab, he's a senior research economist at Pakistan Institute of Development Economics. और इनका जो basically background है, he has worked on producing some of the knowledge tools for the government for different stakeholders, जिसमें tax expenditure reports हैं FPR के लिए, many policy briefs for the government. तो उन्होंने recently एक taxation पे कुछ काम भी किया है, तो Mahmood Khalid साहब उस पे he will shed some light on it. And then we have another young champ, Salman Dar Saab. He's an investment analyst at Investment Climate Reform Unit. So I think this is the short introduction or the brief that what we want to achieve throughout this discussion. Or I'll begin with Rahmat Saab because he has been in this game for quite some time and he will break the ice. Rahmat Saab, over to you, please. Bismillahirrahmanirrahim. Good introduction. Just without further any introduction and delay of time, हम जो एक गोल अचीव करना चाहते हैं 10 times ग्रोथ इन सियालकोट, डॉक्टर असलम डार साहब की लीडरशिप में, जो हमारे ये वहाँ पर गुरु हैं इंडस्ट्री के लिए, तो उसमें कुछ जो हम काम कर रहे हैं वो तो जैसे मोबिलाइजेशन के होते हैं, जैसे ये इवेंट है तो इसके कनेक्टिविटी है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। वो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है ना, वो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि इंसेंटिव सिस्टम्स क्या होंगे और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो वो उसमें टैक्सेशन जो है वो एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है, जिसने डिसाइड करना है कि लोग कितनी प्रॉफिट्स बनाएंगे, किस साइड पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और डेवलपमेंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। तो टैक्सेशन एक ऐसा टूल है जिसको ट्विस्ट करके तो हम अपनी काफ़ी सारे जो R&D लेड ग्रोथ है और टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ है उसको अचीव कर सकते हैं। यस यासर, अगली स्लाइड। तो ये बस मैंने एक टू बी वेरी क्विक एंड प्रिसाइज मैंने एक एविडेंस शेयर किया है यहाँ पर कि दुनिया भर में कंट्रीज जो हैं वो टैक्सेशन को टूल के तौर पे इस्तेमाल करती हैं टू ड्राइव इनोवेशन, टू ड्राइव टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ जो है। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए और हमें इस पे एक सीरियस वर्क करना चाहिए और टैक्सेशन और R&D का जो कनेक्शन है उसको डेवलप करना चाहिए। इसी के जन्म वतन से आगे जन्म लेंगी जो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस, कोलैबोरेशन और इनोवेशन और जो चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम दुनिया के जो बॉटम 10 कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आते हैं इनोवेशन रैंक में, और हमारा 120 के इर्द गिर्द इनोवेशन इंडेक्स होता है आउट ऑफ 140 कंट्रीज़ जो हैं। यस यासर, आगे। अच्छा, हम एक विश्व सर्कल में हैं। विश्व सर्कल हमारा कुछ इस तरह से है कि हम प्रोडक्शन साइड पे बड़े इनएफिशिएंट हैं, लो टेक हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ना खलील साहब जो राइस के प्लांट हैं, हम बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो कोई हमारे कुछ 4000 प्लांट हैं हमारे राइस के जो हैं, और हमारी तकरीबन अपनी काउंटर जो कंपेटिटिव हैं कंट्रीज, इंडिया, फिलिपाइन, थाईलैंड वगैरह, उन सब में ब्रोकन हमारा ज़्यादा आता है। अगर हम सिर्फ वो ब्रोकन ही अपना कंट्रोल कर लें तो हम एक नई बिलियंस की इकानमी जनरेट कर सकते हैं और हम एक्सपोर्ट मार्केट में सस्ते हो सकते हैं। वो ब्रोकन हमारा इसलिए ज़्यादा आता है कि हमारी जो मशीनिंग प्रोसेस है वो इनएफिशिएंट है, वो उतनी प्रिसाइज नहीं है, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है कि हमारा जो ब्रोकन है हम राइस के अंदर कंट्रोल कर सकें। ये एक एग्जांपल है, आप हर सेक्टर के अंदर इस तरह के एग्जांपल जो हैं वो बना सकते हैं। तो ये जो इनएफिशिएंसी है इसका सीधा सीधा नुकसान ये है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी डिक्रीज कर जाती है एज कंपेयर टू काउंटर पार्ट इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर होंगी। तो जब प्रॉफिट नहीं बनता आपका इंडस्ट्रीज के अंदर तो फिर उसकी पूरी चेन के अंदर प्रॉफिट चला जाता है। अगर राइस प्रोसेसिंग यूनिट पैसे नहीं बनाता तो
वो फार्मर को पैसे फिर नहीं देता। तो यूं पूरे विश्व सर्कल में हम आ जाते हैं। तो फिर R&D पे इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शन ही नहीं रह जाती जब आप लो टेक होते हैं। जब R&D नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लाई कर जाएगी रियल स्टेट में प्रोडक्शन से निकलकर। जब प्रोडक्शन से रियल स्टेट में जाएगी तो सबसे बड़ा नुकसान स्टेट को होगा कि स्टेट की टैक्स कलेक्शन जो है ना वो बहुत सब्सटेंशियली डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो एक विड्थ और लेंथ है वो इतनी कम हो जाएगी कि स्टेट को टैक्स कलेक्ट नहीं होंगे। तो ना स्टेट R&D पे इन्वेस्ट कर सकती है, ना प्राइवेट सेक्टर R&D पे इन्वेस्ट कर सकता है ड्यू टू वेरी थिन मार्जिन इन प्रॉफिटेबिलिटी। और यूं फिर ये हम इस वक्त इस विश्व सर्कल में हैं जो कि हमें किसी तरह समहाउ इसको ब्रेक करना है। यस सर आगे। उसके डिफरेंट मेजर हो सकते हैं इस विश्व सर्कल को ब्रेक करने के। टैक्सेशन कुड बी अ वन ऑफ देम। अगर हम टैक्सेशन को एज ए टूल इस्तेमाल करें, प्रो इनोवेशन टूल के तौर पे, तो अगर हम टैक्स क्रेडिट दे दें फॉर इनोवेशन तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका ये होगा कि प्रोडक्शन में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होगी, क्योंकि टैक्स क्रेडिट से आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बैलेंस करते हैं। वो जो आपको इक्विलिब्रियम चाहिए होता है वो आप बैलेंस कर देते हैं, जिससे नतीजातन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी, नतीजातन हाई टैक्स कलेक्शन होगी स्टेट की, हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी प्राइवेट एंटरप्राइजेस की। तो आपके पास स्पेस निकल आती है R&D के अंदर इन्वेस्ट करने की। मतलब हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि हमारे मुल्क का प्राइवेट सेक्टर R&D में इन्वेस्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट नहीं करता, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट से तो हुई है, लेकिन जिसको हम R&D या टेक्नोलॉजी लेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसके लिए मार्जिन नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि उस तरह के अकॉर्डिंगली इंसेंटिव स्कीम्स नहीं है। तो अब R&D में जब इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर एफिशिएंट R&D होगी, तो पूरी वैल्यू चेन के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और हम फिर उस विश्व सर्कल से वर्चुअल सर्कल में शिफ्ट हो जाएंगे। यस, इसके डिफरेंट टूल हो सकते हैं। आप लिटरेचर देखेंगे, दुनिया के एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत टूल्स मिलते हैं जो टैक्सेशन टूल हैं एज ए प्रो इनोवेशन टैक्सेशन पॉलिसी के। मिसाल के तौर पे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं इनोवेटिव, उन पे कुछ टैक्स क्रेडिट मिल जाए। जो R&D की इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स से अगर माइनस कर लें तो उन लोगों के लिए इंसेंटिव हो जाएगा कि वो R&D की तरफ कुछ पैसे शिफ्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री को टैक्स क्रेडिट दिया जाए ताकि वो यूनिवर्सिटियों को और फैकल्टी को कंसल्टेंसी की पेमेंट कर सके, तो उनके फिर बॉटम लाइन पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, तो उनके लिए मार्जिन बन जाएगा कि वो प्रोफेसर्स को एंगेज करेंगे फॉर देयर एकेडमिक लेवल कंसल्टेंसी। तो यूं एक R&D को बूस्ट मिलेगा। इसी तरह डंपिंग हो जाती है जब कोई नई टेक्नोलॉजी आप लेके आते हैं, तो उसके लिए एंटी डंपिंग मेजर के तौर पे टैक्स क्रेडिट को यूज किया जाए। इसी तरह ये जो हमारे बहुत ज्यादा हम फंडिंग करते हैं HEC और PSF और दूसरे अदारे जो हैं, लेकिन उस फंडिंग के लिए हमें मैचिंग ग्रांट इंडस्ट्रीज में नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो फंडिंग जो है ना वो आइसोलेशन में एग्जीक्यूट होती है और उसका फिर नतीजतन हम कोई इम्पैक्ट नहीं देखते। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री को टैक्स क्रेडिट दे दें और इंडस्ट्री उसी क्रेडिट से जो पैसे उसको बचें वो HEC को PSF को एज ए मैचिंग ग्रांट दे दें, तो इसका मतलब है कि आपकी स्टेट के पैसों की यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी और आप टेक्नोलॉजी डिलीवरी जो है ना वो ज़्यादा प्रो इंडस्ट्री कर सकेंगे, प्रो यूटिलिटी कर सकेंगे और कुछ नतीजतन इकोनॉमिक एक्टिविटी साइंस से निकाल सकेंगे। इसी तरह इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए टैक्स क्रेडिट जो है वो एक स्कीम है जिसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसको एज ए टूल यूज करना चाहिए। क्योंकि मेरा मकसद डिस्कशन को जनरेट करना है तो इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ हाईलाइट्स करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसका जो वे फॉरवर्ड है, जो अल्लाह करे कि इस सेशन के नतीजे में हमारा वे फॉरवर्ड निकले, और थैंक्स टू इकोसैफ और खलील साहब और चेयरमैन मंजूर सोमरू साहब, इसके नतीजे में अगर हम ये डेवलपमेंट कर जाएं तो ये आप समझे कि ये भले पहला ही सही बारिश का कतरा, लेकिन ब्रेक थ्रू होगा बहुत। एक तो ये है कि कोई इंस्टीट्यूशन इसको ओन करे, इस सब्जेक्ट को, प्रो इनोवेशन टैक्सेशन सब्जेक्ट जो है इसको ओन करे, इस पे मुसलसल डेलिब्रेशंस हों, पब्लिकेशंस हों, गाइडलाइंस बने, कुछ ना कुछ काम इस पे मुसलसल होता रहे। इकोसैफ इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, पाइड इज द गुड इंस्टीट्यूट और पॉलिसी के इंस्टीट्यूट, या हम एक मुश्तरका सी भी एफर्ट कर सकते हैं IRP इकोसैफ पाइड के, इसको हम सब्जेक्ट को फिर मिस ना होने दें। उसके बाद हमारे पास कोई कमेटी पाकिस्तान में ऐसी हो जिसमें इंडस्ट्री, एकेडेमिया, स्टेट के लोग हों, गवर्नमेंट के, जो मुसलसल पॉलिसी प्रपोजल्स दें कि टैक्सेशन एंड इनोवेशन का कनेक्शन बनाने के लिए पाकिस्तान में।
तो वो फिर कमेटी रिवाइज करेगी, चीज़ों को रिव्यू करेगी, और हर क्वार्टर में हम कुछ ना कुछ इनपुट स्टेट को दें, जिससे वो R&D, प्राइवेट सेक्टर R&D इन्वेस्टमेंट को ड्राइव कर सके, डिज़ाइन कर सके और इसको ग्रो कर सके और इसका इम्पैक्ट भी दे सके। फिर ये खाली गवर्नमेंट की प्रपोजल से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर एडवोकेसी बड़ा ज़रूरी है। तो हमें ऐसे भी कुछ पार्टनर्स चाहिए, भले वो कोई यूनिवर्सिटीज़ हों, भले इकोसैफ हो, कोई फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो सकती है, इवन सियालकोट चैम्बर के अंदर कोई एक विंग बनाया जा सकता है जो फिर इसकी एडवोकेसी करे, बार बार ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ, मिनिस्टर्स के साथ इस डायलॉग को प्रमोट करे कि जो एक्सपर्ट पॉलिसी बनाएं उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम हो। तो इन समरी ओनरशिप बड़ी ज़रूरी है, प्रो इनोवेशन टैक्सेशन कंसेप्ट की, इसके ऊपर एक कमेटी बनना ज़रूरी है जो लाइक माइंडेड लोगों की जो इस पे काम करें, और फिर उसके बाद इसकी एडवोकेसी बड़ा ज़रूरी है। अगर एडवोकेसी नहीं होगी तो भी ये काम नहीं आगे बढ़ेगा। तो बस यहीं पर मैं अपनी बात का इत्तेफाक करता हूँ और ओपन करता हूँ कि आगे खलील साहब इसको ड्राइव करें और हम फर्दर डिस्कशन का पार्ट बने। थैंक यू खलील साहब। Next, I would like to begin with Dr. Mahmood Khalid Saab. रहमत साहब ने जो बातें की बिल्कुल टू द पॉइंट, वेरी हार्डकोर stuff which can really bring some change in terms of how we are doing या managing the business as of today. और उसमें I would like to add that there are examples as well such as pharmaceutical industry जिनके लिए already ये चीज़ committed है कि they are going to get some rebate in the form of research and development funds. और वो फिर उसको यूटिलाइज करेंगे फॉर देयर डेवलपमेंट एंड अदर्स. सो सच टाइप्स ऑफ models can be replicated in other businesses as well. Now coming back to my topic of discussion, since PIDE has a fiscal policy center और हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी जिसमें एक्सपेंडिचर्स और टैक्सेस दोनों साइड्स के आ जाते हैं, तो एक्चुअली वी डेवलप्ड रिफॉर्म्स proposal report last year after the budget was presented in terms of how the things can be improved. और उसमें हमारा जो एनालिसिस है ये मैक्रो लेवल का है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंस हमारे पास ग्रास रूट लेवल की इंफॉर्मेशन जिस रहमत साहब ने आइडेंटिफाई की है, बाकी हमारे कोलीग्स यहाँ पे बात करेंगे शायद नहीं है, लेकिन फ्रॉम दी अवेलेबल policy documents and the available data sources we have come out with certain policy proposals which can bring in some change. क्योंकि हमारा ओवरऑल ये ख्याल है कि कोई भी नया टैक्स लगाने से पहले अगर हम मौजूदा टैक्स के निज़ाम को इम्प्रूव कर सकें तो वो ना सिर्फ हमारे लिए ज़्यादा रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगा, साथ साथ बहुत सारी जो डिस्टॉर्शंस इन द सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करेगा. जैसे भी रहमत साहब ने कहा कि जो इस किस्म के टैक्स क्रेडिट्स हैं, दीज आर बेसिकली नजेस कि जो आपकी किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि इन अदर वर्ड्स एक पूरा बिहेवियरल चेंज आ जाता है इन टर्म्स ऑफ हाउ द पीपल आर डूइंग बिजनेसेस. वाइसे वर्सा, जिस तरह एक चीज प्रमोट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, अगर आपकी पॉलिसी गलत हो तो वो उस एक्टिविटी को रोक भी सकती है, यानी कि इट्स अ पुल फैक्टर which can stop businesses from doing their businesses in the best possible manner. तो अगर हमने अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो वी हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस which can really improve the system's efficiency without basically putting too much burden on the businesses. तो इस सिलसिले में वी कम आउट विद अबाउट 12 proposals और आज मैं briefly उनको go through करूंगा. If some of you have specific questions, I would like to address them. और अदरवाइज ये हमारा जितना भी काम है या इस हवाले से हम जितना भी काम करते हैं ये हमारी वेबसाइट पर मौजूद है पाइड की. तो ओवरऑल जिससे मैंने अभी पहले कहा दैट existing policy has certain fundamental problems, such as we set up elusive tax to GDP targets. मतलब under the IMF pressure या हमारी जो overall fiscal position है जिसमें expenditures की requirement हमारी बढ़ती जा रही है, तो the FBR overall और या overall जो हमारे tax collecting organs हैं, they are forced to show that we are going to really
change the story this time, और हमारा जो tax to GDP का target है that is set very high. और जब आप एक बार बहुत ज़्यादा अपना target set कर लेते हैं which cannot be theoretically met by the existing production lines या existing taxpayers, तो then the FBR has to resort to arbitrary measures. और जब वो arbitrary measures की तरफ जाते हैं तो these are basically really business choking. तो हमारे पास नॉर्मली जो एक सेटअप है पॉलिसी का, उसमें हमने ये सोच लिया है कि जो हमारी ग्रोथ है या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर वाली साइड से आएगी, यानी कि स्पेसिफिकली पीएचडीपी से, वेयर एज दी सेम कैन बी बेटर मैनेज अगर हम अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को इम्प्रूव करें. तो ओवरऑल जो टैक्स पॉलिसी हमारी, दिस डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स व्हिच आर जनरली एक्सेप्टेबल, सच एज दैट द टैक्सेस हैज टू बी फेयर. फेयर मींस दैट इट शुड कंसिडर द ability to pay, और उसके बाद फिर it should be the same across the same possible tax basis, plus there has to be a certainty element. आप आज अगर एक गोल पोस्ट देते हैं बिजनेसेस को, तो वो उसकी बेसिस पे अपने आने वाले 20-25 साल की बिजनेस प्लान डेवलपमेंट कर लेते हैं. बट इफ यू आर सेटिंग अप टारगेट्स विच आर आर्बिट्रेरी, और आप पॉलिसी चेंज लेके आएंगे हर साल, ये इवन साल से पहले भी, तो उसमें द बिजनेसेस आर गोइंग टू really feel an uncertain environment which basically increases their cost, और overall जो हमारी efficiency या convenience है that basically falls. So overall what we think is that the current tax policy is killing the transactions. Economics में जो overall activity है, that's very important. The more value is created, the more transactions takes place. The businesses happen. I'm selling to you, you are selling to me, we are selling to somebody else. उस सब में एक आपकी value create हो रही होती है. तो जितना हम transactions को force करेंगे by pursuing bad tax targets, तो हमारे जो end results हैं, these would be business choking. So over time, what we have seen in the history is that there are many budgets. Many budgets को अब हम नाम दे देते हैं SROs का या हमारे जो ordinances हैं, because these are not debated in the parliament. और साथ ही साथ जो overall हमारी documentation drive है, that has really choked the businesses. हमने estimate किया है कि around 2.5 लाख रुपया plus हर business को हर साल देना पड़ता है just to manage the documentation portion of the taxes. यानी कि अगर किसी बिजनेस को लेट से 50,000 रुपया टैक्स देना है जीएसटी की मद में, तो सिर्फ उस 50,000 रुपए की सबमिशन के साथ उसको तकरीबन 2.5 लाख रुपया उसकी मैनेजमेंट में लगाना पड़ेगा, जिसमें अकाउंटेंट की सर्विसेज हैं, बिजनेस प्रेमिसेस का है, प्लस अपना टाइम है, और कुछ ओवरहेड्स भी हैं विच आर नॉट जनरली नॉट अकाउंटेड फॉर. साथ ही साथ हमारी जो बाकी पॉलिसीज हैं, जैसे टैरिफ पॉलिसी है, वो भी बेसिकली कंपटीशन या ग्रोथ को एनहांस नहीं करती. जैसा कुछ सजेशंस अभी दी भी गई, पहले स्पीकर ने कहा कि हमारी जो टैक्स क्रेडिट्स हैं रिलेटेड टू द डंपिंग ऑफ द अदर कंट्री. सिमिलरली देयर आर अदर इश्यूज विद द टैरिफ पॉलिसीज एज वेल. जैसे अभी भी हमारे जो एवरेज टैरिफ रेट्स हैं वो रीजन में सबसे ज्यादा है. फिर उसके बाद वी डिफरेंशियली ट्रीट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. जैसे मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि जी हमारा जो एक्स बिजनेस है उसमें अगर मशीनरी इंपोर्ट होती है तो वो 0 रेट पे है, जबकि मशीनरी किसी भी और बिजनेस के लिए वुड बी टैक्स्ड विद ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस और विद होल्डिंग टैक्सेस. whereas the machinery should be the same for every business, because हमें तो end of the day output को measure करना है, और वो चाहे जिस मर्जी सेक्टर से आए. तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हमारी टैरिफ पॉलिसी के अंदर भी हैं. ओवरऑल द टैक्सेस आर वेरी हाई. देयर आर, फिर उसके बाद डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारी ऐसी एग्जेम्पशंस दी जाती हैं कि जो फायदे की बजाय सिस्टम के अंदर डिस्टॉर्शंस क्रिएट करती हैं. और ये सब हमारी जो अभी मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिसमें हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और पूरी दुनिया क्राइसिस में है, और जो हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, दैट इज गोइंग टू रियली जेपटाइज हाउ वी आर गोइंग टू do business for the next given years. तो overall we come out with about 12 proposals, जिसमें हमने withholding taxes के बारे में बात की गई है, और इसी तरह अगली की which I am going to go one by one. सबसे जो पहला हमारा point था which we made as a proposal was that the withholding tax regime really need to have a paradigm shift. अगर आप overall अब revenue collection के अंदर withholding taxes का contribution देखें, तो on average about 70% of our income taxes are coming from withholding taxes. यानी कि जो FBR है उसने अपना काम businesses को या जो withholding agents हैं जहां जहां पे transaction हो रही है उसको shift कर दिया.
बजाय इसके कि the FBR identifies the actual source of the income, they are happy in terms of collecting the taxes through withholding. Withholding का मतलब है कि the agent which is making transaction is going to assume a set of income of the individual for which the transaction is carried out और वो charge करेंगे. जैसे मिसाल के तौर पर स्कूल हैं, वो बच्चों की फीसेस में अब withholding income tax लेंगे. अब nobody knows कि actual जो हमारा इनकम टैक्स का बेस है या स्लैब कितनी एप्लीकेबल है और कितना हम टैक्स दे रहे हैं. उसके बाद फिर बहुत सारे इसमें से टैक्सेस हैं कि जो नॉन एडजस्टेबल हैं एट द टाइम ऑफ returns filing as well. So that really creates a problem in terms of how the businesses have to manage the documentation और उनका जो person to person या business to business contract है, that also gets affected. So this is what we propose, that the withholding tax regime needs to be simplified. First of all, we need to take away all the unnecessary withholding taxes and we should focus on the source of income और वहां से individuals को आप target करें rather than putting the burden of identification on other businesses' shoulders. So we did a small exercise in terms of identifying the revenue non-spinners. यानी कि एक जो withholding taxes में हमारा proposal था कि आप ठीक है चलें आप कहते हैं कि जी हमारे लिए ये major source of earning है, तो let's calculate those revenue entities या lines, tax lines कि जिसमें हमारा बहुत कम tax collect हो रहा है. क्योंकि मैंने जैसे भी पहले बात की कि आपको टैक्स की फॉर्म में ना सिर्फ रेवेन्यू देना है गवर्नमेंट को, साथ ही साथ उसकी बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है. तो ओवरऑल व्हाट वी थॉट वाज दैट लेट्स फोकस ऑन दोज टैक्स लाइंस इन द विदहोल्डिंग कि जिनका रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम है लेकिन वो बिजनेसेस को चोक करते हैं बाय अननेसेसरी documentation and the other issues. So what we came out with that out of the 82 withholding tax lines, about 35 were basically contributing less than 1% of the total withholding taxes, even not even the income tax overall, but the withholding taxes. फिर उसके ये तकरीबन कोई 9.22 बिलियन बनते हैं, यानी कि 35 tax lines in the withholding taxes are just contributing 9.22 billion. सेकंड हमने यही एक्सरसाइज की सेल्स टैक्सेस के लिए. तो इट टर्न्स आउट कि आउट ऑफ द 821 टैक्स लाइंस फॉर द डोमेस्टिक सेल्स टैक्स, अबाउट 596 टैक्स लाइंस ऐसी हैं कि जो सिर्फ 7 बिलियन कंट्रीब्यूट करती हैं पाकिस्तानी इन द ओवरऑल डोमेस्टिक सेल्स टैक्स रिसीट. इसी तरीके से जो सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट है, अबाउट 42 टैक्स लाइंस आउट ऑफ द 97 वर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड ओनली 8 बिलियन. Customs के अंदर there were 37 lines out of 95, and similarly the federal excise duty had about 9 tax lines which were contributing just about 2 billion rupees. So overall in the whole 4 trillion there was about 32 billion rupees only which was collected as a very small amount, but there are business implications in terms of the documentation, in terms of creating distortions, in terms of misuse, and so many other things. So we calculated that if we can simply stop collecting this, तो ये सिर्फ ना सिर्फ businesses को जो उनकी business documentation cost है related to the tax filing, साथ ही साथ जो FBR की भी अपनी tax collection cost है, because इस सारे system को manage करने के लिए भी उनको pay करता है, तो हमारी एक cost save हो सकती है. अब उस कॉस्ट को अगर हम कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ द पॉसिबल बिजनेस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर एक बिजनेस टैक्स नहीं पे करेगा तो वो उस मनी सेव्ड को क्या करेगा, ही इज गोइंग टू रीइन्वेस्ट इट इन द बिजनेस. तो वी थॉट कि अगर बिजनेसेस को ये अबाउट 32 बिलियन का आप टैक्स माफ कर देते हैं तो वो ये 32 बिलियन बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर देंगे for enhancing their production capacity or improving whatever their businesses are. तो उसकी वजह से हमारी overall economic growth बढ़ जाएगी और आपको जो बाकी हमारे regular tax lines हैं वहां से हो सकता है इससे ज्यादा recovery भी हो जाए. So the question is simply making changes which can improve the system. इसी तरीके से we compared the overall tax complication with the rest of the regions. For example, World Bank survey करता है जिसमें they see that what is the time to comply with the corporate income tax correction hours. So it turns out that in Pakistan it is 68 hours to just make a small correction in the tax liability for the corporate sector, whereas in India it's just 3 hours. For Bangladesh it's 37 hours. So these hours are basically time value of the money which can be converted into investment and reduce the uncertainty. Overall
if we can simplify, that is going to reduce the tax compliance cost. इसी तरीके से there are distinctions in terms of the filers, non-filers. That has actually not helped. अगर आप डेटा देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि जी फाइलर नॉन फाइलर डिस्टिंक्शन की वजह से हमारा टैक्स रिटर्न फाइलिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया है या उसकी वजह से हमारे रेवेन्यूज के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंज आ गया. The only thing which has happened is that it has created more distortions in the system. The idea is that those who are supposed to pay taxes should pay taxes. Simple as that. जब आप distinctions देना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे businesses को and overall system के अंदर distortions create होती हैं which are not friendly for the overall economic side. फिर इसी तरीके से हमारे पास बहुत ज्यादा सेपरेशन है इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. जैसे इनकम है तो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे कुछ और टैक्स होगा, प्रिजम्पटिव रिजीम पे कुछ और टैक्स होगा, कॉर्पोरेट टैक्स पे कुछ और होगा, मिनिमम टैक्स जो है टर्नओवर्स पे कुछ और होगा. देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन द सिस्टम. व्हाई कांट देयर बी अ सिंपल इनकम टैक्स फॉर व्हाटएवर पर्सपेक्टिव या व्हिचएवर बिजनेस दैट इज, बिकॉज दैट्स द horizontal equity which we are talking about. Any income should be an income and it should be taxed. इसी तरीके से अब हमारे पास बहुत सारी रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज हैं प्रोविंशियल लेवल्स पे भी, एंड एवरी अथॉरिटी इज चार्जिंग अ सेपरेट इन सेल्स टैक्स रेट which creates again an anomaly in the system because it creates distortions. Plus on top of that they have to do the business documentation with all the respective tax authorities as well. अगर आप ओवरऑल हमारा सिस्टम देखें तो there is so much complication. For example, I estimated that there are about 34 documents besides the clarification and notifications. That means 15 acts, 11 ordinances, and 8 rules, which every business has to read literally in order to understand what his or her liability is towards the tax collecting authority. The system is so complex. If you look at the tax ordinance, income tax ordinance 2001, amended up to 31st December 2019, it had about 634 pages of all pure legal languages. So how can you imagine a simple businessman can become tax compliant as well as take the advantage of wherever the possibilities of his tax liability can be reduced is by him or herself. So invariably they have to look for consultation with those who are the subject experts, or they have to deal as with the tax inspectors by bribing them or doing something out of the normal course of the business in order to settle their liability. So that is what the system needs to really think about. और यही चीज पर हमारे पास बाकी secondary sources से भी आती है. जैसे अगर आप फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का देखें डेटा तो वहां पर ये नजर आता है कि सबसे ज्यादा जो हमारी कंप्लेंट्स है वो रिफंड से रिलेटेड है. Now refund is the right of the business. So can you imagine a good policy where the persons whose right is basically blocked by the FBR and they have to go to the court in order to get them settled, because that again involves time cost, the resources cost, and overall uncertainty increases in the system. So that is what needs to improve before thinking about any other proposal. Simplify what we can do in the system today. और दूसरी साइड पे हमने इतनी exemptions भी दी हुई हैं. अगर if you look at the tax expenditures जिनको हम basically exemptions in the system कहते हैं, तो we are basically paying about 1.2 trillion rupees each year in order to basically the exemptions budget which the FBR is offering. Similarly, what we conclude was that the taxes has to be investment friendly. It should promote industrialization rather than kill the. और उसमें जैसा अभी पहले पैनलिस्ट ने भी कहा कि we have to give incentives. तो इसी तरीके से we have proposed that the new projects as well the expansion of the existing industrial concerns should be given tax reliefs or tax credits, such as there should be better depreciation expense to be used as a tax reduction while we are arriving at the taxable income. तो conclude हमने ये किया कि Pakistanis don't evade more than what the other countries do. अगर ये जितनी हमने कैलकुलेशन की अगर हम ये वापस डाल दें, यानी कि जो टैक्स कंप्लायंस कॉस्ट है, टैक्स एक्सपेंडिचर कॉस्ट हैं या बाकी हमारी जो एडजस्टमेंट्स हैं, तो इट टर्न्स आउट अबाउट 14.23% of the GDP for 2019. This is what the system is paying. So it's not 9.9 which is reported.
If you are forgetting about the overhead costs, so that is your problem, because you have made a system which is very complex. So what is needed is that we need to do more research in the tax policy administration. The revenue targets has to be realistically set so that there is no race towards achieving those by making measures which are not business friendly. And finally, the emergency fixes such as the mini budgets, which are there to as a IMF conditionality or any other political slogan, that is something which basically puts brakes on the businesses in terms of doing their economy to improve. So thank you very much. And I would like to have any questions at the end. If you like to visit from where these basically bullets were developed. So these are all available on our website. Thank you very much. So next I will go to Dr. Salman Dar Saab. He is an investment analyst at the Investment Climate Unit, and since he works closely with the many industrial units in Sialkot, so he will be able to give us some micro level picture, the taxation and governance, how can we better implement it so that we can improve the resource efficiency of the businesses and etc. Over to you, Salman Saab. थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब ने काफी अच्छा एक होलिस्टिक व्यू में जो हमारे टैक्सेशन के जो इश्यूज हैं और बड़ी अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया और बड़ा वेल थॉट आउट एनालिसिस था. मैं इसलिए उन चीज़ों में कुछ चीज़ें मैंने उसमें कवर करनी थी, बट मैं उनको अब छोड़ूंगा. और अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइज अगर मैं सियालकोट इंडस्ट्री के ऊपर आऊँ, जो उनके टैक्सेशन के इश्यूज आ जाते हैं, जो क्योंकि जो एग्जिस्टिंग आपके जो टैक्स रिजीम है उससे आप बहुत कुछ लर्न करके आगे चल सकते हैं. उन्हीं से ही आप फिर नई पॉलिसी बनाने से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पहले उसी को ही देख के, तो उसमें से जो बॉटलनेक्स हैं अगर वो आप निकालें तो उससे एक एज मिलेगा. और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री बनाने के लिए डेफिनेटली टैक्स क्रेडिट्स, इंसेंटिव्स और ये तो करना पड़ेगा. और कोई भी पॉलिसी है वो मेरे ख्याल में दो चीज़ों पे ही है. एक तो जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दोनों चीज़ें होंगी, वो किसी भी टैक्स में हो या किसी और शोबे की भी आप पॉलिसी बनाएं, तो एंड ऑफ द डे ये चीज़ें बिजनेसेस को स्पेशली देखने में तो यही है. ठीक है जी. जो हम इस टाइम पे, तो अगर मैं सियालकोट की बात करूं तो हम कोविड पैंडेमिक क्राइसिस से ने काफ़ी बुरी तरह हिट किया वेरियस सेक्टर्स को, आपकी इकोनॉमिक स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, और जिसके नतीजे में उनके कैंसिल हो गए, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हुए, और जो एक्सपोर्ट गुड्स थी उसके नतीजे में जो उनकी पेमेंट्स थी वो भी काफ़ी डिले. तो लिक्विडिटी क्रंच जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो टैक्सेशन सियालकोट जो है वो एसएमई का हब है, और जाहिर है अगर हम इनको सही अगर हमने मेजर्स ना अडॉप्ट किए सेफगार्ड करने के लिए, तो उसके तो एक इररेमेडिएबल लॉस जो है वो हमें सफर करना पड़ेगा. क्योंकि सियालकोट का सिर्फ जैसे आपने मेंशन कर दिया स्टार्ट के 2 बिलियन, मोर देन 2 बिलियन की एक्सपोर्ट है सालाना, और इसमें पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है. क्योंकि मैं जानता हूँ सियालकोट से मेरा ताल्लुक भी है वैसे, तो एक लोगों में एक थ्रिल है, वो एक वलवला है जो आपको आगे लेके चलता है. अब 10 लोगों से 8 लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि 8 कहेंगे कि जी हमने एंटरप्रेन्योर बनना. तो ये चीजें टैक्स पॉलिसी, टैक्सेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उनको फैसिलिटेट करें माइक्रो लेवल पे भी जितना आप कर सकते हैं. साथ साथ क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल जब भी एक चेंज आता है तो वो नीचे से भी साथ साथ आपको लेके चलना पड़ता है, तो वो एकदम नहीं आता. ये तो एक पक्की बात है. मेरे ख्याल में कुछ जो इमीडिएट मेजर्स हैं जो सियालकोट की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको भी देखना चाहिए, एफबीआर को, वो मैं कुछ डिस्कस करूंगा कि अगर वो उनको इस फोरम से भी जाते हैं तो डेफिनेटली ये ठीक है जी. रेस्टोरेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स रिजीम है फॉर एक्सपोर्टर्स. उसमें एक सेवरल इश्यूज जो हैं वो एसएमईज और हमारे टैक्स डिपार्टमेंट्स के साथ हम जो एसएमई सेक्टर है वो देख रहा होता है. जो इनकम टैक्स रेट था शुरू में, जो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन के ऊपर 1% जो शुरू में बैंक्स ही काट लेते थे, और
पर्पस ये था कि आपका इंटरेक्शन जो है वो टैक्स अथॉरिटीज के साथ इतना कम हो जाए कि जो बिजनेसमैन का जो टाइम है वो प्योर ज्यादा बिजनेसेस के ऊपर है, ताकि वो एक इंटरवेंशन जो आपस में उनकी रहती है वो एक कम हो। तो अब ये चेंज इन्होंने कर दिया हुआ है। तो उसमें ये है कि, और उसके साथ पहले ये भी था कि उससे रेवेन्यू बहुत बढ़ गया था। एक तो इंटरेक्शन कम हुआ और रेवेन्यू भी बढ़ गया। तो अब ये रिवर्स इन्होंने कर दिया वैसे एफबीआर ने। तो फिर उसके साथ ये हुआ है कि अब वो इनकम टैक्स ऑफिसर ही वो असेसमेंट करे, और वो पहले बड़ा सही था, एक्सपोर्ट का आप 1% सीधा सीधा आप दे रहे हैं, तो वो एक काफी एक एज था। फिर उसके बाद छोटी छोटी चीजें भी हैं। फिजिकल सर्विस ऑफ नोटिस है जो अंडर सेक्शन 218 के ऊपर फाइनेंस एक्ट का, उसमें ये है कि इलेक्ट्रॉनिक नोटिस चले जाते हैं लोगों को, और वो ये है कि जो बिजनेसेस भी हैं वो समटाइम्स ओवरलुक हो जाता है। तो समटाइम्स कोई सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन से बचना भी एक काम होता है। बिजनेसेस जो चाह रहे होते हैं कि वो इससे अवॉइड हो, वो कोई भी चीज ऐसी ना हो, कंप्रोमाइज ना हो। सेल्स टैक्स के ऊपर बात करूं अगर मैं, तो डॉक्टर साहब ने होलिस्टिक व्यू में ऊपर मैक्रो लेवल पे तो डिस्कस कर दिया कि अब एक्सपोर्ट में जो है आपने 5% विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया है जो परचेजेस के ऊपर अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो करनी है। एक्सपोर्ट सेक्टर एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये जो टैक्स होता है ये टैक्स ऑन कंजम्पशन पे है हमारा, सेल्स टैक्स का। तो एक्सपोर्ट में तो दूसरे मुल्क में जानी होती है, एक तो ये भी है, और एक रैशनलाइज होना चाहिए, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट देखना चाहिए, ताकि एक आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, क्योंकि इन्होंने भी पैसा इनके पास अगर है भी, हमारे जो करंट एसएमईज हैं जो अच्छे हैं वो इनोवेशन पे जा भी रहे हैं, तो अगर हम उनके फाइनेंस को कर्टेल करते जाएं ऐसे, या वो गवर्नमेंट में पास अपने वो प्लग इन करती जाएगी, तो वो एक लिक्विडिटी क्रंच तो होगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इसको भी देखना चाहिए। जीरो रेटिंग के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर भी पिछले साल से एक है 5 जो हमारे हैं सेक्टर्स, स्पोर्ट्स, सर्जिकल, लेदर, टेक्सटाइल, ये एक बैकबोन वाला काम ही करते हैं। टेक्सटाइल में अगर आप देखें तो आपकी ह्यूज एक्सपोर्ट उसमें, तो फैसिलिटेशन तो इसमें चाहिए, जो कि हम देखते हैं। नो डाउट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी हैं और वो सारी चीजें हैं, लेकिन स्टिल जो चीजें आपको ऊपर लेके जा सकती हैं, इनको एक ट्रेड ऑफ बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। सो इसको भी रैशनलाइज करना चाहिए, बिल्कुल ही आपने उसको, इनको खत्म नहीं करना चाहिए। कस्टम के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो रीजनल में जो हमारे बेसिकली, इसीलिए क्योंकि मैक्रो पे बहुत बातें हो गई हैं, तो मैं माइक्रो पे जो हमारे करंट में इश्यूज हैं, मैं इसीलिए उसी पे ही ज्यादा रिलाई कर रहा हूँ कि वो भी एक हाईलाइट जरूर हो जाए। कस्टम में पहले होता था जी, लेवी ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हैं वो एफओबी वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट कंसाइनमेंट पे होते, तो जो आपकी रिड्यूस कर देती थी इनपुट कॉस्ट। अब वो ये है कि कॉस्ट एंड फ्रेट पे चले गया पहले, अब तो फ्रेट भी बहुत ज्यादा कॉस्ट हो गई है उसकी, तो सो ये अगर उस पे वापस लाते हैं तो ये एक रीजनेबल इंसेंटिव हमारे बिजनेसेस को, एक्सपोर्टर्स को मिल जाता है। तो ये भी, इस पे भी देखना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें हैं। वही बात है कि वो एक एसआरओ आता है, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, वो मिनी टैक्स बजट्स जो हैं, तो ये वाला काम जो है ना, वो समटाइम्स एक चीज अच्छी खासी हिला के रख देता है बिजनेसेस की। और बैंक्स जो हैं वो हमारे, हम पॉलिसीज तो बना रहे हो, जिसको चाहिए उसको टाइम बैंक लोन नहीं देता, और जिसको नहीं चाहिए उसको बैंक पीछे होता है कि जी आप ले लें। तो ये चीजें तो हैं। उसके बाद मैं लास्टली बस करूंगा क्योंकि टाइम हमारा जा रहा है, मेरा एक क्वेश्चन भी अगर कोई हो। हमारा एनहांसमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक्स रेट्स ऑफ लेदर ग्लव्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, इसके ऊपर एक मुझे लगता है कि एफबीआर ने एक मिस्टेक इनसे हुई है, कोई डेलिबरेटली या कोई होता है कि वो सख्त करने वाली नहीं है, लेकिन इसको रेक्टिफाई जरूर करना चाहिए। लेदर ग्लव्स के ऊपर जो आपका ड्रॉबैक रेट है वो 1.54%, और लेदर जैकेट्स पे और फुटवेयर पे 7.54% और 4.7% है, जो कि सेम बांग्लादेश में और इंडिया में ये 15 और 10% है। सो इसको अगर आप देखें तो ये इसको भी रैशनलाइज करना चाहिए कि आप लेदर ग्लव्स को आपने सिर्फ 1.4 पे 54 पे कर दिया है, और रीजन में आपने कंपेटिटिव भी होना है। तो ये चीजें जो एग्जिस्टिंग में चीजें हैं उनसे भी हमें बहुत लर्न करने की जरूरत है। जो नई टेक्नोलॉजी में यही है कि जी आप 10% ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइस अगर आप वो दे देते हैं इनको
लोन्स दे देते हैं फॉर मशीनरी अपग्रेडेशन और ये, क्योंकि इनोवेशन तो टेक्नोलॉजी से ही आनी है। आपके सिक्स सिग्मा अप्रोच है, लीन अप्रोचेज हैं, ये सारी अगर आपने मैनेजमेंट टेक्निक्स भी अप्लाई करनी है तो यू नीड मनी। तो उसमें जो फैसिलिटेशन है वो तो ऐसे ही आएगी, और ये क्रॉस द बोर्ड आएगी। इसमें यह कि रेलिवेंट जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एसोसिएशन हैं, सबको एक इकट्ठा होकर बैठना पड़ेगा, और एडवोकेसी वाला बात भी है। तो ये एक, लेकिन इसमें अब इमीडिएट स्टेप्स हमें लेने चाहिए अगर हमने रीजन में कंपेटिटिव होना है और आगे बढ़ना है। तो ये मेरी छोटी सी थी, मैंने गुजारिशात ज्यादा मैं इसलिए नहीं, मैक्रो पे मेरा, क्योंकि मैक्रो बहुत अच्छा कवर हुआ, तो ये एक जो हमारे सिटी पर्सपेक्टिव में इश्यूज थे वो मैंने थोड़े से सामने रखे। थैंक यू वेरी मच। So, as a layman, I am not, as I said, KG, I'm not a tax or governance or public policy expert, but I understand KG उसकी implications on overall businesses, technology, industry पे क्या हो सकती है. So, as we see KG, taxes play a critical role जिसमें एक government की जो मशीनरी है, उसके इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सबको बनाने के लिए दे नीड सम रिसोर्स रेवेन्यूज जिससे वो फंड कर सकें. एंड वी सी सियालकोट में अभी इफ इट्स अ $2 billion एक्सपोर्ट मार्केट, तो उसमें से कितना जाता है फॉर टैक्स रेवेन्यू फॉर टू द गवर्नमेंट. एक ये पार्ट. एंड जो सेकंड पार्ट है that Sialkot is a unique example that वो just taxes नहीं दे रहा, but they are working on infrastructure development जो कि usually एक state government का काम होता है, जिसमें आपके एयरपोर्ट्स आ गए, of course उसमें एयरलाइन एक प्राइवेट ऑपरेशंस उन्होंने लॉन्च कर दी. So why is it not that other cities like Lahore, वहां पे भी इंडस्ट्रीज हैं, फैसलाबाद में भी इंडस्ट्री है. So what's the critical thrust behind कि Sialkot has been so successful in developing their own infrastructure जो कि government उसकी responsibility बनती है? Is it that they have already figured it out that if we develop infrastructure तो हमारी जो overall market export है या productivity है या even जो resource efficiency है would grow to margin exceptional levels? What are the key variables behind this? देखिए जी, एक्सपोर्ट जो है उसका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है ना, हाल ही से उसमें एक बड़ा स्ट्रेट अवे टैक्स है. जो भी आपकी एक्सपोर्ट है उसका 1% जो है, आपके $2 billion के ऊपर फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट है, तो उसका 1 billion उसका 1% आप निकाल लें तो वो आपकी एक सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर का ही इनकम टैक्स जो है वो जमा होता है. वो एक अच्छा खासा चंक होता है स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर, अगर आप उसको देख लें. दूसरा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया. बेसिकली जी सियालकोट के लोगों के दिल बड़े हैं. बेसिकली ये कि अगर वो अर्न करते हैं ना, एक तो वो टैक्सेस देने पे उनको कोई इतनी परेशानी नहीं होती. मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं यार कमाया तो टैक्स देना भी है. तो ये तो एक माइंडसेट वहां पर मिलता है. मैंने काफी पंजाब के डिफरेंट एरियाज में गया हूँ, डिफरेंट चेम्बर्स देखे हैं, तो ये एक मैंने इस चीज की एक रिलक्टेंस देखी जो कि वो उनको पसंद नहीं है कि सरकार को के पैसे वो आराम से देना पसंद. सियालकोट में ये एक चीज है. जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हमारे एक्सपोर्ट पे 0.025% सब ने जितनी भी एक्सपोर्ट्स थी सब ने एक फंड बनाया, तो उसमें जो भी एक्सपोर्ट में आना है तो वो उतना डिडक्ट उन्होंने कर लेना. तो वो पैसे हमने सियालकोट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज किए. एयरपोर्ट ऐसे ही लोगों वो बना. एयरपोर्ट में गवर्नमेंट को ये भी एक समझना चाहिए. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की मैं अगर करूँ तो प्लानिंग में तो यही है ना कि अगर आप 5 रुपए लगाते हैं आज, तो आपका मंसूबा होता है कि 5 साल बाद ये 25 रुपए होने चाहिए. तो ये एक चीज समझाना भी जो है ना गवर्नमेंट में एक बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो 5 लेना भी एक बहुत मुश्किल काम है. एयरपोर्ट की अगर मिसाल दें तो वो 23 करोड़ की एक जमीन थी जो गवर्नमेंट ने दी, और वो भी बड़ी मुश्किलों से दी. तो मैं अभी तो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं 1-2 साल पहले की बात करूं तो 23 करोड़ की सिर्फ लैंड थी जो गवर्नमेंट ने दी. 57 करोड़ का टैक्स दिया एयरपोर्ट ने. तो एक जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट और इफेक्ट आता है ना, और उसके साथ जॉब्स भी क्रिएट हुई. तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल इसलिए है कि लोग काम करते हैं, टाइम देते हैं थोड़ा सा. दूसरे शहरों में ये एक माजरत के साथ कह लें
कि वो उतनी एक शायद वो नहीं होती कि आप उतना एक स्पेंड कर सकें, एक पब्लिक वेलफेयर पे निकाल सकें। तो ये एक चीज़ है। पैसे तो मौजूद हैं, तो वो ये है कि वो उसको शायद उस तरह या अपने ही तरीके से कर सकते हो। तो हमारा ये है कि छोटे-छोटे ही बिज़नेस जो होते हैं, थोड़े-थोड़े पैसे डाल के भी वो कलेक्टिव एफर्ट में वो एक रीज़नेबल अमाउंट बन जाती है और उसको पिच करते हैं चेंबर के प्लेटफ़ॉर्म से या जो एपेक्स हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हम उसको वो कोई ना कोई चीज़ प्रोजेक्ट लाना हो तो फिर उस पे एफर्ट करके रोल आउट करते हैं। तो जी, ये थैंक यू। Thank you. If there's any question or queries among participants, तो वो kindly jump in. Meanwhile, मैं डॉक्टर महमूद से जो मेरे सवाल होगा कि ये कि जी एक टैक्सेशन और स्टेट बिल्डिंग का एक डायरेक्ट लिंकेज है, बट ये जो डायरेक्ट लिंकेज है एट नेशनल लेवल पे ये थोड़ा ब्लर होता है बिकॉज कि वो नजर नहीं आ रहा होता. But the cities like Faisalabad, Gujranwala या आपके सियालकोट, there could be a direct impact of आपकी जो taxation है versus जो आपकी local spending है of the local government. तो डॉक्टर साहब, क्या हमारे पाकिस्तान में इतना ऐसा कोई फ्रेमवर्क है जिसमें we could incentivize कि जी वो जो taxation जो उस local industry की वो जो contribute कर रहे हैं, that is visible to the taxpayers at that level? Thank you, Khalil. Uh, Again, I was amazed to hear the Salman Saab's insight at the micro level, और वहीं पे शायद हमारा answer भी मौजूद है that inherently the people always like to pay taxes. Nobody wants to be the lawbreaker. मतलब incentive is to live in a society where everybody's right is protected and they're getting their due share. अब उस सेंस में आई टोटली एग्री कि हमारी जो मौजूदा टैक्सेशन पॉलिसी है इट डज नॉट अकाउंट फॉर द सिटी लेवल या एक स्पेसिफिक रीजनल requirements. And Sialkot in case is a very good example in which or that has been recognized by the government as well. जैसे अभी इमरान खान साहब ने भी विजिट किया और सब चीजें. So we need to make certain amendments in the current tax law. अब वो how will that take place? That is only possible if we take into account these micro issues. और एक हमारे पास national tax authority can be developed in which there could be city level formations, there could be provincial and there could be national level formations, which really accounts for these issues which pertains to the city level. अभी जो हमारे मौजूदा system है, इसमें all the resources are collected, they go to the federation, the federal government, और उसके बाद वो redistribute होते हैं through the NFC award to the provinces, और उसके बाद फिर एक mechanism है which is called the Provincial Finance Commission, जहाँ से ideally these resources should go to the cities या जो हमारे smaller jurisdictions हैं. लेकिन unfortunately NFC के बाद जो हमारा PFC है वो नहीं exist करता because of non-existence of the local governments. तो if that takes place, अगर हमारी local governments establish हो जाएं, तो then we can think about making the provincial finance commissions in such a manner कि यहाँ पे जो local आपके taxpayers हैं या जो local businesses हैं, उनके लिए the incentives to pay taxes improve, rather than they are simply paying without knowing that whether they're going to get the required services out of these tax payments or not. अभी लेकिन हमारे मौजूदा सिस्टम में ऐसी कोई वो नहीं है one to one correspondence के जिसमें जो taxpayers हैं they can really know कि what is their contribution and what they're getting in lieu of that payments. लेकिन hopefully if the local government set up और उसके बाद जो हमारा provincial finance commission award आएगा उसमें ये चीजें involve होनी चाहिए, and the cities, especially the business centers, they should be given their due share in terms of how much they're paying. सियालकोट it did not have कोई जो समझ लें dedicated कोई educational, technical, vocational जो institutes या even University of Sialkot भी 2012-13 में I believe के बनी है. उससे पहले उनका जो technical resource था in terms of जो knowledge capacity development of जो आपके local industries हैं वो कहाँ से आ रहा था इनके पास, और उनका जो ट्रिपल हेलिक्स मॉडल में where does the R&D stand for Sialkot industry? वो फीडबैक उनको किधर से मिल रहा था?
अच्छा देखें खलील साहब, हमारे ना हिस्ट्री में एक साहब गुजरे हैं, खलील किबरिया, इब्राहिम किबरिया, एक किबरिया साहब उनको कहते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान में 70s में एक हमारा इंस्टीट्यूट भी बना था, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उसके भी वो फाउंडर थे। वो बंदा अथॉरिटी था इसमें कि जो इनोवेशन है वो मेजर आती है मिस्त्री रूट से, जिसको हम फोरमैन कहते हैं या मिस्त्री कहते हैं। वो इसका बिलीवर था कि अगर आप इन मिस्त्रीज को स्ट्रेंथन करें और इनके ऊपर डेवलपमेंट करें और इनके ऊपर इन्वेस्ट करें तो ये टेक्नोलॉजी इनकलाब ला सकते हैं। अच्छा, उनकी इस सिलसिला में एक बुक भी है बड़ी मज़ेदार, जो छपी, और जाहिर है कि वो फिर हमारे यहाँ जो ज़्यादातर रश एकेडमिक और हायर एजुकेशन की तरफ चला गया, और ये जो मिस्त्री का रोल है ये ऑलमोस्ट मार्जिनलाइज हो गया या नेग्लेक्ट हो गया। हालांकि हमारी अभी भी जो इकानमी है जितनी भी है वो ज़्यादातर आज भी डिपेंडेंट है उस मिस्त्री पे जिन्होंने जुगाड़ लगा के तो चीज़ों की डेवलपमेंट की। अब हमारे जितने भी प्लांट हैं वो या इम्पोर्टेड हैं या लोकली फैब्रिकेटेड हैं। अब लोकली फैब्रिकेटेड सारे प्लांट जो हैं वो मिस्त्रियों ने बनाए हैं हमारे यहाँ, सही है। तो इसी तरह मेजर इंडस्ट्री गुजरांवाला, डस्का, सियालकोट में, इवन कराची में, हैदराबाद में, पेशावर में, वो हमारे मिस्त्रियों ने यूनिट्स फैब्रिकेट्स किए हैं और बड़े अच्छे फैब्रिकेट किए। उसमें वो प्रेसिजन का लेवल नहीं है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो इस लेवल पे जरूर आ गया कि फैक्ट्रियां चलने लग गई। तो इसी तरह जो सियालकोट की ग्रोथ है ये होम ग्रोन ग्रोथ है। आप समझे ना कि अभी भी अगर आप सियालकोट में विजिट करें तो वो जो कारीगर हैं वो सिलसिला ब सिलसिला एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री ने जन्म लिया, दूसरी फैक्ट्री से तीसरी फैक्ट्री ने जन्म लिया, वहां से एक मिस्त्री ने छोड़ा, किसी से इन्वेस्टमेंट पकड़ी और एक नई फैक्ट्री लगा ली, और यूं ये मिस्त्री टू मिस्त्री ग्रोथ जो है वो हुई है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है डेवलपमेंट का, जिसको R&D प्लानिंग में और इंसेंटिव्स में और उसमें टोटली हमने इग्नोर किया हुआ। अब आप देखें ना, आप इनका कंट्रीब्यूशन देखें मिस्त्रियों का और वर्सेस जो PhDs हैं उनका कंट्रीब्यूशन देखें, तो हम PhDs को देते हैं करोड़ों रुपए कि वो R&D करे। मिस्त्री को कितने देते हैं? जिन्होंने सियालकोट जैसी इंडस्ट्री खड़ी की और गुजरांवाला जैसी इंडस्ट्री खड़ी की है। तो हमारे सिस्टम में मिस्त्री की रिकॉग्निशन नहीं है। जो फाउंडर है इसका सियालकोट जैसे हब का और गुजरांवाला जैसे हब का, और इसकी तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जब आए और वहाँ पर फिर कुछ लेबर जो है वो ट्रेंड हुई, उसका एक अपना किरदार है सियालकोट में। जैसे जैसे वो इंस्टीट्यूट आए कोई ट्रेन लेबर फोर्स मिलने लगी और वो इन होने लगी उसमें, लेकिन मेजर किरदार जो है वो मिस्त्री टू मिस्त्री सीखने वाले काम का। अच्छा, ये अभी मेरा एक ओपन क्वेश्चन है फॉर ऑल यू एस्टीम्ड हमारे स्पीकर जो हैं कि government of Pakistan is now engaging in development of many special economic zones, and वो फिर एक नए economic zones बनाने की exercise है. Isn't it that Sialkot is a model for us, and अगर हम सियालकोट की इंडस्ट्रीज को ब्लैंकेट में ले लेते हैं एंड इंस्टेड के जी हम नए इंडस्ट्रीज बनाएं, we take those industries and we declare them as a स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिस तरह आई डोंट नो कि ये कितना फिजिबल होगा, बट प्रीवियसली वी हैव सीन कि चाइनीज ने इस तरह किया है। They have declared zones जहाँ पे already industries थी and then they have provided them tax credits, उसमें exports थी, उसमें R&D credits हैं, उसमें academia industry linkages की institutions बना दिए हैं। तो सलमान साहब, मे बी यू कुड हाईलाइट इट बेटर बिकॉज आप डायरेक्टली काम कर रहे हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, डू यू हैव एनी सजेशन कि जी इस मॉडल को यू ट्राई टू ब्रिंग इन टू जो आपके नए इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो आपके सक्सेस फैक्टर्स हैं, ताकि एक मॉडल आपके ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उसको जस्ट कैरी फॉरवर्ड किया जाए? देखिए जी, अभी तो जो SCGs का जो स्टेटस है ना, वैसे वो तो यही है कि अभी हम कागजों में तो शायद बना चुके हों, लेकिन अभी हम सिर्फ लैंड एक्वायर ही नहीं कर पाए पूरी तरह। यही यहाँ तक ही हम अभी हैं ओवरऑल गवर्नमेंट के लेवल पे, तो कि पूरी तरह एक
भी शायद मुझे लगता है पूरी तरह एक्वायर नहीं हो सका। जहाँ तक जो हमारे सेक्टर्स हैं जो सिर्फ सियालकोट के बेस्ड ही हैं, देखिए कुछ में तो नो डाउट इसमें हो सकता है, लेकिन ये है कि कुछ आपकी एसईजीज भी उसी तरह होना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी जो आपकी सेक्टर स्पेसिफिक और रीजनल स्पेसिफिक की भी बात होती है, जो कुछ रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं वो अडॉप्ट करने की जरूरत है यहाँ पर भी। एसईजी के लिए जहाँ पर छोटी छोटी अभी जो कुछ इंडस्ट्रीज लगाने की बात है, उसी पे इतनी हर्डल्स हैं, या कुछ जो बन चुकी हैं उस पे ईज ऑफ डूइंग के इतने मसाइल हैं। किसी पे आपने स्टे लगा दिया और लैंड है भी काफी जगह, पीपीजेड की बात करूं मैं, अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है जो आपके पास, वो तो अभी बनाना पड़ेगा ना। जो आपके पास एग्जिस्टिंग हैं उनमें भी अभी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो कॉलोनाइज नहीं हो पाती। तो वहां पर यही है कि वो छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं, वो ईज ईज क्रिएट करनी है जो कि चीजें बनी हुई, और वो भी वैसे बताऊं तो काफी चीजें सियालकोट के लोगों के पैसे से ही बनी, उसमें भी गवर्नमेंट की वो जो मैं बता रहा हूँ वहां पर गवर्नमेंट के पैसे नहीं इन्वॉल्व हुए। तो उस पे ये है कि गवर्नमेंट पैसे लगा दिए, प्राइवेट सेक्टर नहीं, लेकिन अब उसको कॉलोनाइज करना है, जो फैसिलिटेशन है उसमें वो गवर्नमेंट ने करनी है, और वहां पर चीजें छोटे छोटे इश्यूज पे स्टक होंगी। एसईजी वाला आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने कुछ काम किया भी इस पे, लेकिन सिर्फ इस आपने अगर आपने बढ़ानी है ग्रोथ, इंडस्ट्री बढ़ानी है, तो आपको डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा, सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं रहना चाहिए, नई इनोवेशन के ऊपर काम करने। फॉर एग्जांपल सॉकर बॉल है, तो सॉकर बॉल में एक हाई प्रिसीजन और एक टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, और मेरा ख्याल में सियालकोट से एक अच्छी डिमांड मीट हो रही है, तो फॉर एग्जांपल उसमें नहीं जाना चाहिए। जो मेच्योर हो रहे हैं उनमें उधर तक ही रहना चाहिए, लेकिन उधर से डाइवर्सिफिकेशन जैसे बाहर बहुत हुई है कि एक इंडस्ट्री दूसरी में निकली है, किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट किया फाइनेंस के साथ, रिसोर्सेज के साथ, तो वो चीजें हैं, वो तो हो सकती हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि एग्जिब आपसे कहता कि सिर्फ इसी में ही हो, आपकी एक स्किल मैन पावर का बहुत बड़ा इशू इसमें साथ साथ है जिस पे काम नहीं हो रहा। तो आपने ग्रो करना है तो उसमें ये भी एक है चीज कि जिसको, वो मेरा ख्याल है अगले सेशंस में आपकी इस पे भी बात होगी कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे आपने लेके आना। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि जो रीजनल और सेक्टर वाइज ये आपने देखना कि उन्हीं रीजन्स में ही अगर आप उसको ऊपर लेके आते तो वो ज्यादा बेहतर। Salman Saab has really pointed out what the lacunas are basically in the current SEZ development. और उसमें again we have to really think कि what are SEZs for? अगर तो ये पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं कि जिसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि जी देखें हमने ये बहुत सारी चीजें कर ली, या रियली वी वांट टू मेक वैल्यू टू द पब्लिक इन्वेस्टमेंट मनी एंड अदर्स। सबसे जो पहला issue है in terms of developing an SEZ is the resource availability. Resources means that it's basically the raw material, it's the human skills which are required and so many other things. जैसे मिसाल के तौर पर अभी CPEC के अंडर हमारे पास तकरीबन 9 के करीब SEZs हैं, तो अब सिर्फ अनाउंस कर देना is not going to end into what is required as a good business model. जैसे अभी सलमान साहब ने भी कहा कि जो उसके लिए required facilities हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है और इस तरह की चीज़ें हैं, अगर वो आप ऑलरेडी जो मौजूदा SEZs हैं उसमें भी नहीं प्रोवाइड कर सके, तो देर आर वेरी लिटिल चांसेस दैट इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू हैव इट। सिर्फ सक्सेसफुल SEZs वो हो सकते हैं कि जिनके पैरेलल ऑलरेडी कोई इस किस्म का सिस्टम है। जैसे अगर आप अभी फैसलाबाद मोटरवे पे जाएं तो एक साइड पे आपका पुराना जो SEZs है उसी के काउंटर पार्ट आपका नया बन रहा है, तो दैट इज गोइंग टू सर्वाइव बिकॉज some infrastructure was already there और एक आपका environment created। अब लेकिन ये गवर्नमेंट को कौन बताएगा? इशू ये है कि if we don't engage in a dialogue in terms of what is required by our domestic producers, domestic commerce, और हमारा सिर्फ फोकस ये है कि we are going to make policies for the sake of political slogans, so that is not going to end up into very good results। हमारे पास failures भी हैं, जैसे गुदूना मज़ाई है, इवन अगर आप आज हतार में जाएं तो बहुत सारी हमारी वहां पे ऐसी वीकनेसेस हैं व्हिच नीड्स टू बी पिक्ड अप। तो अगेन वी हैव टू थिंक अबाउट द लो हैंगिंग फ्रूट प्रिंसिपल, व्हाट कैन बी डन इमीडिएटली, एंड दिस इज वेयर द बिजनेसेस आर गोइंग टू टेल अस दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सपोर्ट इफ यू प्रोवाइड अस दिस रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर, एज इन केस द सियालकोट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। लेकिन अगर हम सिर्फ टॉप डाउन पॉलिसी पर बिलीव करेंगे तो इन द एंड वी आर गोइंग टू मेक गोस्ट टाउन्स
और वहाँ पे रेंट सीकिंग के लिए कुछ एंटिटीज आ जाएंगे, बट रियली द बिजनेसेस आर नॉट गोइंग टू फ्लरिश। वेरी वेल सेड जी के जी, आपके जो विजन है, गोल है, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर कि आपने बनाने क्या जाना है, एंड देन उसमें जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की जो पार्टिसिपेशन है, दैट वुड प्ले अ मेजर पार्ट। गवर्नमेंट हैज टू फैसिलिटेट दैट, वो जो आपकी पोटेंशियल ग्रोथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुन रहा था जी, ये सारी बातें बड़ी जबरदस्त थी, बल्कि मैं समझता हूँ वो जो पहला सेशन था उसमें मैं था, उससे ये इसकी जो डिलीवरेंस है ये इस सेशन की, दैट इज बेटर देन दैट। हालांकि ये इट इज गुड। मैं सिर्फ ये कमेंट करना चाहूंगा कि ये जो अभी एससीजी की बात हो रही थी, और क्योंकि सियालकोट की बात हो रही है, तो वी आर फोकसिंग ऑन ए प्रोजेक्ट के 1000 एकड़ जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्वायर करके तो वहाँ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना लिया जाए, ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री जो है वो 1000 एकड़ की जगह हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। पंजाब गवर्नमेंट ने उसमें कुछ किया, लेकिन देयर आर मैनी स्लिप्स जो अभी चल रही हैं। सियालकोट इंडस्ट्री इज रेडी कि वो उसमें ज्वाइन करे, और उसमें जॉइंट वेंचर्स और जो है ना डाइवर्सिफिकेशन की बात भी हो जाएगी, और रॉ मटेरियल की भी मैन्युफैक्चरिंग की बात, ये जो है ना ये सारी चीजें उसमें अकाउंट पर कर रहे हैं। लेकिन हाउ लॉन्ग इट विल टेक, वे ये एक लंबा काम है। तो जो सलमान ने बात की थी अभी, वो उसमें जो ऑलरेडी हमने वो जो 1-2 जगह 300 एकड़ पे बनाई, दैट वाज एंटायरली फंडेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ सियालकोट। उसमें बॉटलनेक्स इतनी आ रही हैं कि वो सोच रहे हैं कि जैसे वो कोई गुनाह हो गया हुआ है सरजद सियालकोट वालों से। तो ये दुआ करें कि वो गुनाह भी माफी मिल जाए, और आइंदा के लिए ये जो 1000 एकड़ वाली है इसमें कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, और हमारे लिए सियालकोट की इंडस्ट्री के लिए वो बेहतर साबित हो। ये इतना ही कमेंट करूंगा एससीजी के बारे में। राइट, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरा एक फाइनल कमेंट होगा। अच्छा डॉक्टर महमूद खालिद साहब, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं ऑन मैक्रो लेवल, जिसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हैं हमारे या चैलेंजेस हैं हमारे टैक्स रिजीम्स में, तो uh, आप कौन सा मीडियम यू आर यूजिंग दैट यू इंटरैक्ट विद द गवर्नमेंट, और उनके साथ ये किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जी दीज आर द चैलेंजेस एंड ये वे फॉरवर्ड आपका है, और उसको अचीव करने के लिए कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मिल बैठ के और उन पे काम करें एंड यू रिजॉल्व दोस चैलेंजेस? Thank you, Khalil Saab. Very pertinent question. And since we are an autonomous government entity, we are actually the think tank to Planning Commission. तो हमारे पास दो चैनल्स हैं। एक तो ये है कि वी डायरेक्टली एंगेज विद दी स्टेक होल्डर्स, जैसे अभी हम FBR वालों के साथ मिल के काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल टैक्स गैप्स एंड हाउ द पॉलिसीज कैन बी इम्प्रूव। साथ ही साथ हम जिस तरह अभी आपका ये अगस्त फोरम है, हम इस तरह के फोरम्स पर भी लर्न भी करते हैं, जैसे इट्स अ टू वे लर्निंग। आज सलमान साहब की और बाकी जो हमारे प्लीज अहमद साहब, डॉक्टर असलम साहब, इनकी बातें सुन के वी हैव acquired knowledge as well। साथ ही साथ we try to engage in terms of evidence based policy, और फिर उसके बाद then we make small policy briefs which we send to the relevant quarters। लेकिन end of the day who's going to bell the cat is the political will। हमारा जो मतलब है कि as a think tank, as an academia, as a researcher काम होता है to bring out those facts and figures which can help in terms of improving the system। उससे जो आगे उसकी एक्सेप्टेंस है, दैट रियली लाइज विद द ones which are at the helm of affairs, and we try to engage them in terms of these sort of webinars as well, plus we do bigger conferences। लेकिन जो सबसे ज्यादा important है कि we have to have a one-to-one contact, और उसमें फिर at times we fail to get to the chambers where the decisions are basically being made। लेकिन अभी तक जो हमारी सक्सेस है वो ऐसा है कि हम FBR के जो पॉलिसी यूनिट है SP&R, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। उनको हम एडवाइसेस भी देते हैं, और जो हमारा जितना काम है वो शेयर भी करते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी पहले कहा कि अभी विद होल्डिंग टैक्सेस के केस में जब भी हमने उनके साथ डिस्कस करने की कोशिश की, तो दे वर बेसिकली ऑफ द ओपिनियन कि फॉर अस इट्स द रेवेन्यू। जो ग्रोथ पार्ट है या जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज नॉट आवर बिजनेस। तो गवर्नमेंट के लेवल पर ये पॉलिसी मेकिंग का डिलेमा भी है कि उसमें जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है, दे आर मेकिंग
policies very independently. They really don't consider कि how we can do it better if we can share hands. तो वहां पे ये प्रॉब्लम हमें आता है, लेकिन हम जो रोल प्ले करते हैं वो सिर्फ इस हद तक है कि वी ब्रिज द गैप बिटवीन द माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और वी प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू द स्टेक होल्डर्स वाया आवर पॉलिसी ब्रीफ्स, आवर एकेडमिक राइटिंग्स, वन ऑन वन इंटरेक्शन। जैसे अभी कोविड के हवाले से हम बहुत एक्टिवली हम इंगेज रहे, मुख्तलिफ फोरम के साथ हमने उनको पॉलिसी फीडबैक्स भी दिए और हमने उनको प्रपोजल्स भी बना के दिए, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी दी पॉलिटिकल विल और उसमें फिर डिपेंड करता है कि काउंटर पार्ट कौन है। जैसे अभी सानिया निश्तर के साथ हमने काफी काम किया ऑन द सोशल प्रोटेक्शन एंड शी वाज लिसनिंग और हम उनको पॉलिसी इनपुट्स दे रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साइड पे फाइनेंस या एफपीआर डजंट लिसन टू अस टू मच। तो हम सिर्फ इसी किस्म के फोरम्स पे अपने जो क्लेम्स हैं या जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज है वही कर सकते हैं। थैंक यू महमूद साहब। और वी नो द फैक्ट कि जी इस पूरे पैंडेमिक में पाइड हैज जनरेटेड वेरी यूजफुल बेनिफिशियल एक पॉलिसी ब्रीफ, उसमें जो डॉक्टर नदीमुल हक साहब जो ना जो वेबिनार्स करा रहे होते हैं ऑन डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एनर्जी, आई थिंक वो एक बड़ी रिसोर्सफुल डिस्कशन और एक थॉट्स, एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि जी किस तरफ जो ना मुल्क को जाना चाहिए। तो दैट्स वेरी यूजफुल फॉर जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स और रिसर्च एकेडमिया के लिए, ताकि हम कुछ गवर्नमेंट को एक कॉन्क्रीट पॉलिसी जो ना डायरेक्शन दे सकें। कमिंग बैक टू रहमत साहब, जो आपने फाइनल जो वे फॉर खलील, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वी आर ओपन। देखें, एक साइड हमारी है कि वी आर एंगेज विद द प्लानिंग कमीशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, जैसे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या कोई और इंस्टीट्यूट है जो माइक्रो लेवल पे है, तो वी कैन जॉइंटली प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ गुड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर एविडेंस बेस्ड, जिसमें हमारे पास डेटा सपोर्ट अवेलेबल हो फ्रॉम द बिजनेसेस so that good proposals can be made. जैसा आज भी आपने प्रेजेंटेशन में देखा ना, we had to rely on the macro figures and whatever information is available. If you can partner at the micro level, then we can create more vibes which can be sent to the helm of affairs so that they can listen to what actually needs to be done. वेरी वेरी गुड सजेशन। तो अभी हम जो रहमत साहब की भी वे फॉरवर्ड यही था कि जी वी ऑल वर्क टुगेदर, इसमें सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, IRP, वी प्रोड्यूस सम जो सियालकोट जो टैक्स